Students, for advanced feature of MS Excel, we have to open MS Excel first. Click on Start button. Then you can choose MS Excel from the main list. Otherwise, you can go at all programs. After that, click on Microsoft Office, and from there you can choose MS Excel, right? The version can be vary in your computer, as today I am using a computer which has a version of 2007 of MS Access, and in your book this is version 10, right? MS Office 10. So there is no basic differences between them. Some additional commands we have in our uh, upgrade versions, right? Okay, let's start. First of all, we have an option of components of a chart. Means we have to use charts in MS Excel. This is a main feature of MS Excel. Suppose you want to display your numerical data in the form of chart, so that you can identify the values of the data very quickly. And we all know that chart is a graphical representation of data in a worksheet, or we can say it is an effective way to display data in a pictorial form. What is pictorial form? Pictorial means like a picture, like a photo. Okay. Or it helps to provide a better understanding of large quantities of data. कि बहुत सारा डाटा जब हमारे पास होता है, when if we want to read it, then it is quite difficult to understand all the concepts of the detailed data. But if we present our data in the form of chart or graph, you can say, then everyone can understand very easily. Let's prove this with an example. Suppose I am making a table that is also give into your book. I am making it very quick. Name, then marks in English, marks in Hindi, marks in suppose computer, and here I am taking total, right? नेम के अंदर मैं अभी कोई भी नाम ले लेता हूं. यहाँ पे मान लीजिए मैंने आधार लिया, मैंने मान लीजिए मैंने ले लिया भुवन, राइट? एंड थर्ड आई टेक सपोज चरण, राइट? इस पे मैंने ले लिया मान लीजिए देवांक ले लेता हूं, चलो ठीक है. और एक और नाम मैं ले लेता हूं. सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे एहसान, राइट? 5 name I took, and marks are 98, 94, 92, 89, 87, right? In Hindi, I can take 87, 91, 86, then 92, 94, right? In computers, suppose we have 100 marks paper, then suppose marks are 91, 96, 89, 90, or 88, right? Suppose these are the items or these are the data of it. Total कैसे करना है? We all know that. मैंने उसमें बता ही दिया था. यहाँ पे सम पे करके एंटर कर दो और यहाँ पे इसको नीचे तक ड्रैग कर दो, ठीक है? तो ये हमारे पास टोटल आ गया. तो एक चार्ट हमारे पास हो गया बेटा तैयार. इस चार्ट के बेस पे हमने क्या करना है? हमने हमारे पास ये चार्ट डाटा तैयार हो गया. इस डाटा के बेस पे हमें क्या करना है? हमें चार्ट बनाना है, राइट? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द डाटा. 21 डाटा का चार्ट बनाना है, हमने उतना डाटा सिलेक्ट कर लिया. आफ्टर दैट यू हैव टू गो ऑन इंसर्ट टैब. फ्रॉम इंसर्ट टैब यू कैन सी वेरी इजीली दैट वी हैव a chart group, and in this chart group you have so many types of charts which is already displayed in a list, like column chart, line chart, pie chart, bar chart, area chart, scatter, और other chart भी हैं, और भी बहुत सारे charts हैं यहाँ पे, right? तो suppose I choose column chart, and in column chart we have also options like 2D, 3D, cylindrical, और cone style, pyramid style, ठीक? तो इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं. सपोज आई चूज 3D, ओके? 3D मैंने क्लिक किया और ये देखिए आपके सामने एक चार्ट बन के आ गया है.
I am going to enlarge the size so that you can see and understand very clearly. ये देखिए, अब इस चार्ट के वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू द कंपोनेंट्स, ठीक है, कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं चार्ट के। बहुत आसानी से मैंने बनाया, दोबारा बता देता हूं। पहले आपने डाटा बनाना है, उस डाटा को सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड फ्रॉम द चार्ट group you can choose any kind of chart which you want to display. Suppose I choose column chart. In column chart I choose 3D column chart and the result is in front of you, right? Like this. Suppose I am enlarging it so that you can understand. This is the only reason to enlarge it. Okay, now I am going to tell you the parts of the chart, ठीक है, या फिर कंपोनेंट ऑफ ए चार्ट। लुक बेटा, इफ यू हैव योर बुक प्लीज ओपन पेज नंबर 29, अदरवाइज यू कैन also see or observe the changes which are I am going to be made, right? First of all, introduction of the screen. After that we will change it, right? कैसे होगा? सबसे पहले ये जो सारा चार्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो ये जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है सारी ग्रे और थोड़ा सा ग्रीन मिक्स कलर की, दिस इज कॉल्ड योर चार्ट एरिया। व्हाट इज इट? चार्ट एरिया। इसको चार्ट एरिया बोलते हैं बेटा। और इस चार्ट एरिया को के अंदर ही हमारा पूरा का पूरा चार्ट डिस्प्ले होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे, अब आपको मैथ्स के अंदर आपने ग्राफ वाले सम भी किए होंगे, है ना? तो ग्राफ वाले सम जब हम करते हैं तो वी हैव टू एक्सिस ऑफ इट, नंबर वन एक्स एक्सिस एंड नंबर टू वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल टू लैंड, है ना, जमीन के पैरेलल जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। और जो फ्रॉम डाउन टू अप और अप टू डाउन होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाइन जाती है जो, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। वो वर्टिकल हमारा होता है वाई एक्सिस, ठीक है। लेकिन जो ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसमें उनको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बोल सकते हो, लेकिन उनका टेक्निकल नाम यहाँ पर क्या है? जो एक्स एक्सिस है, जो आपका ये बना हुआ है आधार, भुवन, चरण, देवांक और एहसान, ये जो लाइन जहां मैं माउस का एरो मूव कर रहा हूं, दैट इज एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू योर ग्राफ सम इन मैथमेटिक्स। बट इन कंप्यूटर when you are designing the graph then or chart, this is a category axis. This is x axis means कैटेगरी एक्सिस, ठीक है। तो कैटेगरी एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोल देते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोल देते हैं? कैटेगरी एक्सिस बोल देते हैं, राइट बेटा? ओके, उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमें इसके बारे में पता करना है। ये जो वाई एक्सिस था चार्ट के अंदर, ग्राफ के अंदर, ये क्या है? इसको बोलते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं हम, देखो 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, राइट? तो when we display the values on y-axis, then it will call क्या? वैल्यू एक्सिस, ठीक है। तो इसको वाई एक्सिस ना बोल के यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? वैल्यू एक्सिस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वैल्यू एक्सिस, राइट? उसके बाद हमारे पास आता है ये जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं आपको, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, देखो ये एक ब्लॉक ये है, एक ये है, इनके ऊपर जाओगे तो इट विल डिस्प्ले देयर नेम, है ना? तो ये नाम वगैरह सारा कुछ बता रहे हैं और अपनी वैल्यू भी बताते हैं कि क्या वैल्यू इसकी है। ये सारे के सारे अपने अलग अलग वैल्यू कंटेन किए हुए हैं, राइट बेटा? तो ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं डाटा सीरीज। क्या बोलते हैं? डाटा सीरीज, राइट? ओके, अब उसके बाद डाटा सीरीज किस काम आती है? टू डिस्प्ले द वैल्यूज इनटू द चार्ट, राइट? उसके बाद हमारे पास आता है कैटेगरी नेम। ये जो नीचे लिखा हुआ है कैटेगरी एक्सिस के नीचे जो नेम लिखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटेगरी नेम। और साथ साथ ये जो वैल्यूज शो कर रखी होती है, ये भी हमारे क्या है? कैटेगरी नेम, ठीक है। ये हमारे नेम्स हो जाते हैं, इनको आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, ठीक है बेटा? ये हमारे हो जाएंगे क्या? कैटेगरी नेम। साथ में कब होंगे ये? जब हम इसको यहां पर, यहां जैसे यहां मैं लिख देता हूं मार्क्स और यहां मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स नीचे, तो हमारे क्या बन जाएंगे? कैटेगरी नेम बन जाएंगे वो, ठीक है बेटा? उसके बाद है प्लॉट एरिया।
ये जिस एरिया के अंदर आपको लाइन नजर आ रही है, यानी जिस एरिया के अंदर आपने डाटा को प्रेजेंट किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है, ये दिस एरिया इज कॉल्ड प्लॉट एरिया, क्योंकि इस पे इसके ऊपर हमने डाटा को प्लॉट कर दिया है, बना दिया है इसके ऊपर डाटा को, है ना, डिजाइन कर दिया है। सो दैट इट इज कॉल्ड प्लॉट एरिया। क्या बोला जाता है इसको? प्लॉट एरिया। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म इसके अंदर क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये वाली टर्म, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं थोड़ा इनलार्ज करके। ये देखो, ये आपके एसएसटी में भी होती है। एसएसटी में क्या काम आती है? यू कैन ऐड दिस ऑप्शन जस्ट अंडर द मैप। कोई भी मैप में अगर आपने हिल एरिया शो करना है तो आप यूज करते हैं ब्राउन कलर। इफ यू वांट टू शो वाटर देन यू कैन यूज ब्लू कलर, है ना। तो और इसी तरह से अगर आपको रेलवे ट्रैक यूज करने हैं तो आप एक लाइन के ऊपर उसके क्रॉस लाइंस लगा देते हैं, ठीक है। तो यानी कोई भी चीज आपको शो करनी है तो नीचे जो आपके बॉक्स बने होते हैं उसमें एक सैंपल देकर उसके आगे उसका नाम आप लिख देते हैं। तो इसको कंप्यूटर के अंदर बोला जाता है लीजेंड। क्या बोला जाता है? लीजेंड। LEGEND, लीजेंड, ठीक है। तो ये लीजेंड आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये मैं अपने अगले जो अभी थोड़ी देर के बाद जो हम उसको स्टार्ट करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग में, तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आपको कहां मिलेगा? बाय डिफॉल्ट इट विल ऑलवेज शो एट द राइट हैंड साइड ऑफ द चार्ट, जैसे अभी आया हुआ है राइट हैंड साइड में। ओके बेटा, तो अब हमें क्या करना है? इस लीजेंड को ध्यान से देखना है और इस लीजेंड से ही हम समझ सकते हैं कि कौन सा कलर किस सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है इंग्लिश, फिर हिंदी है, फिर कंप्यूटर है, फिर टोटल है। इंग्लिश के लिए ब्लू कलर है, हिंदी के लिए ये जो भी तुम मान लो ये डार्क ब्राउन या जो भी कलर है, लाइट ग्रीन कलर दिया है कंप्यूटर के लिए, और पर्पल कलर दिया हुआ है हमें टोटल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको समझने में आसानी होती है। उसके बाद है यहाँ चार्ट का आप टाइटल भी लिख सकते हो, वो आगे फॉर्मेटिंग के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि चार्ट का ऊपर नाम आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखना है रिजल्ट, ठीक है, तो रिजल्ट यहाँ आ जाएगा, दैट विल कॉल्ड चार्ट टाइटल। क्या होगा वो? चार्ट टाइटल। और उसके बाद है ग्रिड लाइंस। ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं प्लॉट एरिया के अंदर, दिस इज कॉल्ड ग्रिड लाइंस, ठीक है। ग्रिड लाइन से क्या होता है? ग्रिड लाइन से थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे पास और कि हमारे पास वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये 300 से थोड़ा नीचे है, 200 से 250 से ऊपर है, ठीक है ना। ये देखिए लाइन है, तो ये ग्रिड लाइंस हमारी हेल्प करती हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमारा चार्ट की जो कंपोनेंट्स हैं दे आर कवर्ड नाउ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ चार्ट्स। कि अगर आपने एक बार चार्ट बना दिया है एंड इफ यू वांट टू चेंज इट्स टाइप्स यू कैन डू इट वेरी इजीली। हाउ यू विल चेंज? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। लुक स्टूडेंट्स, देर आर टाइप्स ऑफ चार्ट्स। अभी हम इसके अंदर इस चार्ट की टाइप को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पर अदर चार्ट टाइप भी है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और इसको डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, और जैसी चार्ट के ऊपर आपने डबल क्लिक किया या एक भी क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, मैं क्लिक करूंगा तो यू विल नोटिस दैट डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट, 3 मोर टैब्स वी विल गेट। ये देखिए यहाँ मैंने क्लिक किया है। In this condition, we have only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Only seven tabs we have, right? 7 tabs we have. But whenever we click on the chart area, then we will get 3 more tabs for our help or for our formatting, right? Like design. In design, we can format our chart. Layout, you can add some display options more, and finally format, you can give color scheme to your chart area, ठीक है। तो ये अब हम करेंगे सबसे पहले डिजाइन में, and the first option of in the group of type we have 2 options, that is change chart type or save as template. We will go on change chart type. When you click on it, you will get another dialog box that will represent all the types of the charts. Like first is column chart, then
लाइन चार्ट, वेन एवर यू क्लिक ऑन इट। पाई चार्ट, ये देखो यहां से सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने लाइन पे किया है तो लाइन वाला एरिया शुरू हो गया है, मैंने कॉलम पे किया है तो कॉलम वाले सारे एरियाज हैं, ठीक है। फिर है पाई चार्ट, पाई के ये ऑप्शंस हैं। फिर बाई चार्ट, फिर बार चार्ट के अंदर पाई चार्ट के बाद बार चार्ट है। बार चार्ट के अंदर कितने ऑप्शन है हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक 5, 4, 7, 14 और 15 ऑप्शन वी हैव। तो बार चार्ट में और आपके कॉलम चार्ट में अंदर वी हैव मैक्सिमम ऑप्शंस, लाइक 7, 7, 14, 14 एंड 5, 19, ठीक है। तो 19 ऑप्शंस वी हैव इन कॉलम चार्ट and 15 options we have in bar chart. Then area chart, in area we have 6 types of charts, and then xy scatter, xy scatter again we have five types, and stoke we have only 4 types. Surface again 4, donut is we have 2, bubbles we have 2, and radar we have 3, ठीक है। तो ये सारे के सारे 4 टाइप्स है बेटा। You can choose any one. Suppose I want to change. Suppose I want to keep column chart, but I want to change its types. ठीक है, तो मैं मान लीजिए ये वाली टाइप लेना चाहता हूँ, रहने देना चाहता हूँ कॉलम में, तो मैंने ओके किया और यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड प्रेस ओके। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द चेंज। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। कैसे है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। कारण क्या है इसका, कि एक तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही अच्छा हो गया है, ठीक है ना, कि ये 3 जोड़कर ये एक बिल्डिंग बन जाती है, बिकॉज दिस बिल्डिंग इज रिलेटेड विद टोटल, है ना। तो ब्लू कलर इज फॉर इंग्लिश, देन डार्क ब्राउन और वट एवर कलर इज इट, it is, you can understand, it is for Hindi, then light green for computer and dark purple for total, ठीक है बेटा। तो इस तरह से you can change the chart type of it, ठीक। तो ये बार चार्ट वगैरह जो भी थे हमारे पास, जो हम करते थे, इसके अंदर एक चार्ट टाइप ऐसी है जो आपको एक गेम्स के अंदर मिलती है, दैट इज इन क्रिकेट। जब भी आप कोई रन रेट वगैरह शो करना चाहते हो तो यहां से आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दूसरी ऑप्शन है पाई चार्ट। जब आपको डाटा को किसी गोल एरिया के अंदर शो करना होता है तब आप पाई चार्ट यूज करते हैं, लाइक दिस। ये मैंने पाई चार्ट बना दिया, तो इसने हर एक के अकॉर्डिंग जो जितना जितना भी एरिया था, जैसे इसने इस सारे का टोटल करके उसको एक राउंड में मान लिया, और जिसका जितना परसेंटेज बनता था टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग उतना एरिया इसने उसको दे दिया है, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर टोटल जो हमारे बन रहे हैं वो इस सारे का टोटल आएगा, हिंदी के अंदर इसका आएगा, या फिर ये स्टूडेंट के नेम के अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं। जैसे इंग्लिश का दे दिया इसने, बस सिर्फ इंग्लिश का, है ना। तो इंग्लिश के अंदर आधार का एरिया ये है, उसके बाद दूसरा एरिया किसका है, भुवन का एरिया है। भुवन, क्योंकि देखिए इंग्लिश के अंदर आधार के सबसे ज्यादा है, इसलिए वो एरिया सबसे बड़ा एरिया दे दिया गया है, ठीक है। और लास्ट में एहसान, इस तरह से इसको चेंज कर दिया गया है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं और उसको उसकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। जैसे लाइन चार्ट में आ जाएं, लाइन चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट। बार चार्ट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉलम चार्ट। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ओके करते हैं। देखो वो इस तरह से था, हॉरिजॉन्टल बेस, हॉरिजॉन्टल लाइन उसका बेस होती थी कॉलम चार्ट का। इसका बेस क्या होती है, वर्टिकल लाइन, यानी थोड़ा सा चार्ट को उसने टेढ़ा कर दिया है, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सम मोर ऑप्शन, मोर इंटरेस्टिंग ऑप्शंस। सपोज ये वाले ऑप्शन लेते हैं, चलो ये देखिए, इस तरह से एक स्टोन की शेप के अंदर भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो यानी अलग अलग तरह के चार्ट्स हैं जो, और यहाँ ऊपर देखो कलर कॉम्बिनेशंस बहुत हैं, ये देखिए आप जितने मर्जी कलर कॉम्बिनेशन कर लीजिए। जैसे आप यहाँ कलर कॉम्बिनेशन करते हैं, यू कैन जज और यू कैन ऑब्जर्व दैट द वैल्यू which is represent in legend also get affected, right? It is also changing. Look, देखो ये ग्रे और हल्का व्हाइट का कॉम्बिनेशन हो गया, यहां से सारे के सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, ये देखो, है ना। तो यहां से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइक दिस।
ओके, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज अगेन चार्ट टाइप। सपोज मैंने ये कर दिया, ये देखिए इस तरह से भी आप चार्ट बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो ये है ऑप्शंस हमारे पास इंग्लिश के अंदर। इसको सिंपल वे में ले आते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से समझना आसान हो जाएगा। लाइन चार्ट मैंने आपको बताया था कि हम क्रिकेट के अंदर यूज करते हैं जब भी हमें स्कोर दिखाना होता है या कंपैरिजन रन रेट दिखानी होती है, स्कोर की पर ओवर कितना हुआ, इस चीज को हम शो करते हैं। ठीक है, स्कैटर चार्ट इसलिए स्कैटर है क्योंकि इसकी ऑप्शंस ही इसी तरह की आती हैं। देखिए मैं स्कैटर चार्ट करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैं ये लाइन लगा देते हैं, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने के लिए इस तरह से देखते हैं। ये देखिए अलग अलग तरह के डॉट्स लगे हुए हैं, दैट्स इट। तो स्कैटर चार्ट इज वेरी यू कैन से कंफ्यूजिंग, कि आप उसको एकदम से ही उसके अंदर आप ऑप्शन नहीं ले सकते हैं, इसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादातर हम कौन सा यूज करते हैं, कॉलम चार्ट यूज करते हैं, और कॉलम चार्ट में भी सिंपल ऑप्शन हम लोग यूज कर लेते हैं। राइट बेटा, अब इसके बाद है हमारे पास चार्ट हमने कैसे बनाना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप डाटा चेंज करते हैं, ध्यान रखिए, अगर आप डाटा यहां चेंज करते हैं तो यू विल गेट चेंज इंस्टेंटली, साथ साथ ही आपको चेंज उसके अंदर देखने को मिलेगा। सपोज मैं हिंदी के अंदर आधार नाम के बच्चे में ये जो है, और हिंदी का क्या कलर है, ये वाला ब्राउन कलर है, अभी कम है, मैं इसको 100 कर देता हूं तो ये यहां तक आ जाएगा पूरा। देखिए 100 किया, जैसे नेक्स्ट पे गया, ये देखो ये ऊपर आ गया है इसके, है ना, हल्का सा 98 से ऊपर आ गया है। फिर उसके बाद मैं इसमें इसको भी मैं 100 कर देता हूं, सभी के 100 कर देता हूं। चलो ये देखो इसके कंप्यूटर में भी 100 हो गए, और अगर यहां भी 100 कर दूंगा तो तीनों बराबर हो गए हैं, ये आप देख सकते हो। मान लीजिए किसी के मार्क्स में कम कर देता हूं, सपोज मैं देवांग के मार्क्स 70 कर देता हूं, तो देवांग का जो कंप्यूटर है वो कौन सा है, देवांग का कंप्यूटर ये वाला है। इस पे ध्यान रखना आप, ये रिड्यूस हो जाएगा। ये देखिए ये पहले यहां था, अब ये रिड्यूस हो गया है, पहले ये था अब ये हो गया है। ठीक है, चेंज नजर आ रहा है आपको, ये देखो बेटा। राइट, तो इस तरह से आप इसको चेंज में लेके आ सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको चेंज कर सकते हैं। और आप एक बात का और ध्यान रखना, जब मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं तो इसके, मान लीजिए मैं एहसान की बात करूं तो एहसान का कॉलम ये है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका 269 है, तो जब ये चेंज होगा तो साथ में ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखिए अब की बार मैं इसको 100 कर देता हूँ, एहसान के कंप्यूटर में नंबर 100 कर देता हूँ। 100 करने से अब ये 269 पे है, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, और ये कंप्यूटर का तो जाना ही जाना है। ये देखिए आप, ये देखो दोनों ऑप्शंस यू कैन मैच, ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया, क्योंकि ये इसका टोटल है, ये अपने आप चेंज होता ही है एक्सेल के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा चार्ट, जिसको आप और अच्छे से ड्राइंग भी कर सकते हो। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पे जाइए, सॉरी लेआउट पे जाइए, यहाँ पर आप देखिए इसमें ऑप्शंस हैं, आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ। इसके अंदर आपने ध्यान रखना है, आप क्या करोगे, चार्ट टाइटल, सेंटर ओवरले, ये आ गया चार्ट टाइटल। मान लीजिए मैंने यहां दे दिया है रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट आ गया, ये जस्ट वेट, रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, इसको उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने रख दिया है इसको। ठीक, उसके बाद डिजाइन के अंदर, लेआउट के अंदर एक्सेस या डाटा सीरीज, डाटा लेबल्स कर लेते हैं। चलो शो ऑन डाटा टेबल, ये देखो ये टेबल इसके साथ आ गए नीचे, यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं हटा देता हूं, डाटा लेबल्स शो डाटा लेबल्स, ये देखिए मैंने डाटा लेबल शो किए हैं, तो क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखना है आपने, जो ये वैल्यूज थी ये उसके ऊपर चली गई हैं। देखो यहाँ 100 दे दिया था मैंने इसको, ये 94, 91, 96, so that you can understand directly, and this look is very helpful to understand the chart for any type of user। ठीक है ना, चाहे कोई छोटा बच्चा है चाहे कोई बड़ा आदमी है, वो इस लुक को देखते ही समझ जाएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द चार्ट। ठीक है, और कौन सी बिल्डिंग कितने नंबर के लिए है। ओके बेटा, तो ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। लीजेंट को आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं इसकी, जैसे शो एट द राइट साइड है इसका, टॉप में करना है, ये देखो ये ऊपर आ गया,
लेफ्ट साइड करना है ये लेफ्ट साइड आ जाएगा, बॉटम में करना है ये नीचे आ जाएगा, जहां भी आप चाहते हैं तो वहीं पे ये मूवमेंट हो जाएगा। और लीजेंड एट बॉटम, ओवरले लीजेंड एट राइट, ये इसके ऊपर आ जाएगा, देखो चार्ट के ऊपर ही, क्योंकि ओवर राइट बोल रहे हो आप, ओवरले बोल रहे हो, ओवरले एट लेफ्ट, लेकिन वैसे देखने में तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन इसकी यही है, राइट साइड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको कहाँ लेके जा सकते हो, एट बॉटम। ना तो ये बॉटम में इतना बुरा लगता है और ना ही ये आपका, ये देखो बॉटम पे भी अच्छा ही लगता है, यहाँ से पता लग जाता है। चार्ट का एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा इससे, चार्ट थोड़ा बढ़ जाता है अगर आप इसको बॉटम में ले आते हैं तो। और अगर जैसे मैं राइट साइड करता हूं तो यू कैन ऑब्जर्व द चार्ट ऑटोमेटिकली श्रिंक, क्योंकि हमें उसी एरिया के अंदर लीजेंड को भी फिट करना है, तो ये थोड़ा सा लंबाई में हो जाता है, चौड़ाई में कम हो जाता है, राइट बेटा। तो ये थी हमारे पास ऑप्शन। अब इसके अंदर दो ऑप्शन और हैं, सिर्फ इसको मैं फटाफट करके आपको बता देता हूं, सो दैट यू कैन ऑल्सो यूज इट। टू डिलीट इट, सिलेक्ट ऑन इट एंड प्रेस डिलीट बटन। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब मैं सोर्टिंग करके बता रहा हूं कि हम लोग पोजीशंस कैसे निकालते हैं आप लोगों की, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में करना होता है। ये हमारे पास रिजल्ट है, यहाँ साइड से आपने हेडिंग छोड़ के डाटा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करके आप जाते हैं होम के अंदर ही, एडिटिंग ग्रुप के अंदर सोर्टिंग, और सोर्टिंग में हम क्या करते हैं, कस्टम सोर्ट। क्या करेंगे, कस्टम सोर्ट। ये शॉर्ट नहीं है, सोर्ट है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या करना है, इसमें यहां पर ये आपसे पूछेगा, सबसे पहले तो ये ऑप्शन हटानी होती है आपने, माई डाटा हैज हेडर, इसको हटा दो, हमें कोई जरूरत नहीं होती इसकी, याद करके हटाना है। ठीक है, उसके बाद सोर्ट बाय, आपको देखना है कौन से कॉलम पे आपको सोर्ट करने से आपका काम चल जाएगा। हमें पता है कि एफ कॉलम के अंदर जो ऑप्शंस हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उनसे हमारा काम चलना है, बिकॉज दिस इज द टोटल। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो कॉलम एफ को मैंने सिलेक्ट किया। अब ये पूछता है कि भाई कॉलम में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना है तो हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना ही पड़ेगा, सबसे पहले सबसे हाईएस्ट, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे जाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, व्हेन आई विल क्लिक ऑन ओके बटन, देन यू कैन ऑब्जर्व द चेंज इन इट। ठीक है, इसको थोड़ा करने के लिए मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इसको 1 2 3 4 5 दे देता हूं, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा किस लोकेशन पे था। मैं इसके अंदर इसको यूज कर रहा हूं, कहां गया मैं, सोर्ट एंड फिल्टर पे गया, कस्टम सोर्ट पे गया, माई डाटा हटा दिया मैंने। कई बार हटा मिलेगा, नहीं हटा मिलता है तो आप हटा सकते हैं, एंड आपको हटाना ही चाहिए। फिर इसके अंदर मैंने क्या कॉलम ले लिया, एफ कॉलम ले लिया, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और ओके। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द चेंज। Now you can observe the change that 1 2 ओके है, देखो पहले 300, फिर 281, फिर सेम आ गया तो 281, उसके बाद फोर्थ नंबर पे 271, एंड फिफ्थ के ऊपर क्या आ गया, 267, जबकि रोल नंबर आपको चेंज मिले, क्योंकि रोल नंबर के अकॉर्डिंग ग्रेड नहीं आते। अब यहाँ पे आप पोजीशन डाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, और अदरवाइज ये जैसे हमारे पास 2 सेकंड्स हैं तो आप ये भी कर सकते हो, 2 सेकंड हो गए, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, इस तरह भी कर सकते हो। और अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आ गया तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम पड़ने वाली हमें है ही नहीं। ये देखो अब ये ओके हो गया, 3 4 एंड 5। अगर कोई सेम आ जाता है तो उसको सेम पोजीशन दे दो। तो इस तरह से हम सोर्टिंग यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, और इसमें लास्ट कमांड हमारे पास क्या है, दैट इज फिल्टर। मान लीजिए मैं इसके अंदर एक ऑप्शन और डाल देता हूं यहाँ पे, एंड दैट ऑप्शन इज स्टॉप। स्टॉप की ऑप्शन मैंने डाल दी। पहला मैंने डाल दिया, मैं शॉर्ट एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं घरौंडा के लिए GHD, करनाल के लिए KNL। ठीक है, आप पूरा नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 बच्चे तो घरौंडा से कर दिए हैं, 3 बच्चे, और 2 बच्चे मैंने करनाल से कर दिए हैं। इफ यू वांट टू सर्च आउट, अभी तो ये बहुत कम है तो आप गिन सकते हो, लेकिन कई बार हमारे पास डाटा होता है पूरे स्कूल का, देन यू कैन, व्हाट यू विल डू, यू कैन डायरेक्टली फिल्टर योर डाटा, दैट इज कॉल्ड फिल्टर। फिल्टर का मतलब ही होता है छानना, यानी जो काम की चीज है वो अलग हो जाए, जो वेस्ट है वो अलग हो जाए। जैसे चाय छानते हो आप, तो जो वेस्ट होता है वो होती है क्या, चाय की पत्ती, वो आपकी रह जाती है छलनी में, फिल्टर में, और जो काम की चीज होती है वो
साइड में हो जाती है, चाय आपकी अलग निकल जाती है ना, आप उसको कपों में सर्व कर लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, डाटा को आपने सिलेक्ट करना है, या आपने सिलेक्ट किया, या जिस साइड आपको सिलेक्ट करना है उसी के ऊपर क्लिक करो ऊपर से। फिल्टर जब भी करोगे तो कॉलम सिलेक्ट करना है ऊपर से, सॉर्टिंग जब भी करोगे तो रोज नंबर से सिलेक्ट करना है। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। ये यहाँ पे क्लिक किया, फिर वहीं जाना है, और अब की बार क्या करना है, फिल्टर। ये देखिए जब भी आप फिल्टर करते हो तो यू विल गेट दिस साइन, ये साइन आ जाता है एक, इस पे क्लिक कीजिए, देखिए सिलेक्ट ऑल हटाओ। अगर आप सिर्फ घरौंडा कर दोगे, और मैं इसको ओके कर देता हूं, ये देखिए सिर्फ सिलेक्ट हटाओ, सिर्फ घरौंडा और ओके, ये देखो सिर्फ घरौंडा के बच्चे आ गए हैं फिल्टर होके, ये छनकर बाहर आ गए अलग से, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए सब हटा दो, सिर्फ करनाल कर दो, तब भी सिर्फ करनाल के आएंगे। सारे देखने हैं तो आप इसको सिलेक्ट ऑल कर दो, ओके कर दो, वापस सारा डाटा आ जाएगा। और बाद में जब नहीं जरूरत है फिल्टर की, फिर दोबारा वहीं पे जाओ, ऊपर से सिलेक्ट करो कॉलम से, सॉर्टिंग पे जाओ, फिल्टर को हटा दो, फिल्टर हट जाएगा, ठीक है। तो ये थे बेटा आपका लेसन नंबर 3। इट इज ऑल्सो कवर्ड only in one lecture. So I will send you question answers of and back exercise of lesson number 2 and 3 together, right? So till then practice of these 2 lessons, and if you face any problem, you all have my personal contact number and you can contact me anytime. Excuse me, sir. Okay beta, bolo. Sir, I want to ask that my class was disconnecting again and again. I think there was network issue. Okay. So will this video be uploaded on YouTube? Definitely beta. You will get the link with the homework of today. So okay. I can understand this all there. All the students will get the computer class link, this computer class link with the homework, right? आज का जो होमवर्क आएगा उसके अंदर आएगा ये आपके पास, ठीक है। ओके बेटा।